یہ اسلام مذہب کے پیغمبر محمد ہے۔ یہ چھوٹی سی بچی عائشہ جس کی شادی 50 سال کے اسلام کے پیغمبر محمد سے ہونی ہے۔ ساتویں صدی کی شروعات میں مکہ شہر مورتی پوجکوں کا وشال گڑھ ہوا کرتا تھا۔ اس وقت تک اسلام کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس وقت کعبہ کے پوتر مندر میں 360 دیوی دیوتاؤں کی مورتیاں ہوا کرتی تھی جسے لوگ دل سے پوجا کرتے تھے۔ سن 613 عیسوی میں مبارک ہو مبارک ہو، آپ کی بیٹی ہوئی ہے۔ مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو ابو بکر۔ شکریہ، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے ایک اور بیٹی دی۔ میں بہت خوش ہوں میری بیگم۔ سب اللہ کا کرم ہے۔ میری بیٹی کا نام کیا رکھو گی؟ اس پیاری سی بچی کا نام عائشہ ہوگا۔ الحمد اللہ، میں ابھی کعبہ میں جا کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اس چھوٹی سی بچی کو کیا پتا تھا کہ اس کی زندگی 6 سال کی عمر میں اجڑ جائے گی، جو کہ محمد اجاڑیں گے، جن کا جنم 570 عیسوی میں مکہ شہر میں ہوا۔ محمد کے جنم سے پہلے ان کے پتا عبداللہ کا ندھن ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے محمد کی ماں امینہ اپنے بچے کو بہتر تعلیم کے لیے حلیمہ کو سونپ دیتی ہے۔ حلیمہ انہیں 5 سال تک پال پوس کے بڑا کرنے کے بعد اسے واپس اس کی ماں کو بھیج دیتی ہے۔ 6 سال کی عمر میں محمد اپنی ماں اور اس کے ٹھیک 2 سال بعد اپنے دادا عبد المطالب کو کھو دیتے ہیں۔ اس طرح وہ 8 سال کی عمر میں ہی اناتھ ہو جاتے ہیں۔ اب ان کی دیکھ بھال ان کے چاچا ابو طالب کرتے تھے، جن کے ساتھ وہ بھیڑیں چرایا کرتے تھے۔ محمد 25 سال کی عمر تک کنوارے رہے تھے، جو کہ ان دنوں بےحد عجیب تھا۔ حالانکہ وہ اپنی چچیری بہن ہمانی کو چاہتے تھے، لیکن ان کے چاچا ابو طالب نے اپنی بیٹی کا ہاتھ انہیں دینے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ اس کے ترنت بعد انہوں نے 2 بار بدوا ہو چکی امیر کاروباری خدیجہ کے یہاں اونٹوں کے قافلہ سنبھالنے کا کام ملا، لیکن اپنے سیریا کے پہلے سفر پر انہیں کچھ ایسا چمتکار حاصل ہوتا ہے۔ اچھا تو اب تم لوگ سفر کے لیے نکل جاؤ۔ اللہ تم لوگوں کا سفر بہترین بنائے۔ میں ایسی دعائیں کروں گی، اچھے سے جانا تم لوگ، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے مالکین، ہم جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے مالکین، ہم بھی نکلتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ لوگ کہاں رہ گئے، انہیں اب تک آ جانا چاہیے تھا۔ او مالکین، ہم لوگ آ گئے۔ تم لوگوں کا سفر کیسا ہے؟ میں تم لوگوں کا انتظار کر رہی تھی۔ سب کچھ اچھا ہوا۔ ایک اچھی خبر ہے۔ کیا خبر ہے؟ میں نے دیکھا جب محمد اونٹ پہ سوار تھے اور دھوپ بہت تیز تھی تو کچھ ایسا ہوا۔ کیا ہوا؟
आगे तो सुनो। ओह हाँ, मैंने देखा 2 जन्नत की परियां मोहम्मद को तेज धूप से बचा रही थी। क्या सच में? अगर ऐसा है तो इस बात को मैं बड़ा का भाई को बताऊंगा, वो इसका इंतजार कर रहे थे। खदीजा के चचेरे भाई वराका ईसाई धर्म के बहुत बड़े जानकार थे। वो लोगों तक प्रभु यीशु का संदेश पहुंचाया करते थे ताकि लोग किसी एक को मानना शुरू कर दे, और ऐसी आशा रखते थे कि लोग मूर्तियों की इबादत करना छोड़ दे और मुझे अपना पैगंबर बना दे। लेकिन कट्टर विचारधारा के होते हुए ऐसा सोचना भी बहुत बड़ा गुनाह था। खदीजा, क्या तुम ठीक हो? इतनी दौड़ी दौड़ी क्यों आई हो? एक अच्छी खबर देनी है। क्या? अगर ये सच है तो मोहम्मद हमारे अगले पैगंबर होंगे जो हम सब लोगों को सही राह दिखाएंगे। इसके बाद मोहम्मद की लगन व ईमानदारी से प्रभावित होकर खदीजा मोहम्मद से शादी का प्रस्ताव रखती है और मोहम्मद राजी हो जाते हैं। और इस तरह 25 साल के मोहम्मद 40 साल की धनवान औरत खदीजा से सन 595 ईस्वी में शादी करते हैं, जहाँ खदीजा के भाई वराका उन्हें 400 दीनार के दहेज की धनराशि के साथ उन्हें विदा करते हैं। शादी के कुछ समय बाद ही मोहम्मद ने दुनियादारी से नाता तोड़ हीरा गुफा में समय बिताना शुरू कर दिया। ऐसे ही 15 साल गुजर गए और तभी सपने में उन्हें एक अदृश्य शक्ति का आभास होता है जो उसे अल्लाह का नाम पढ़ने के लिए जबरदस्ती करती है। लेकिन जब उन्हें कुछ समझ न आया तो आसमान से आवाज आती है, हे मोहम्मद, मैं अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता जिब्राइल हूँ। खदीजा, खदीजा, तुम्हें पता है आज मेरे साथ क्या हुआ? आज तो मैं गुफा में डर ही गया था। क्या हुआ था आपको वहाँ? घबराओ नहीं, वो जरूर अल्लाह का कोई संदेश होगा जो तुम्हें देना चाहते हैं। तुम डरो नहीं, मैं अभी बराका से पूछती हूँ कि ये क्या था। बराका भाई, एक बहुत अच्छी खबर है। क्या है अच्छी खबर? मुबारक हो, वो फरिश्ता जिब्राइल थे जो सबसे पहले मूसा को मिले थे। अब से मोहम्मद हमारे पैगंबर होंगे। कहाँ है वो? मैं उसे मुबारकबाद देना चाहूँगा। वो काबा में अल्लाह का शुक्र अदा करने गए हैं, आपको वो वहीं मिलेंगे। मुबारक हो मोहम्मद, तुम सच में किस्मत वाले हो जो फरिश्ता जिब्राइल तुमसे मिलने आए। मैं तुम्हारा मकसद पूरा करने के लिए तुम्हारे हरदम साथ रहूंगा मेरे दोस्त, हरदम तुम्हारे साथ। इसके बाद मोहम्मद ने मक्का में लोगों को इस्लाम की तालीम देना शुरू किया, जहां आप अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं कर सकते। उनकी पहली कन्वर्ट खदीजा, उसके बाद उसका मुंह बोला बेटा जैद और चचेरा भाई अली था। हालांकि वराका ने मोहम्मद की इस्लाम फैलाने में भरपूर मदद की, लेकिन उन्होंने कभी भी इस्लाम को ईसाई से बढ़कर नहीं माना और 2 साल बाद वो मौत को गले लगा लेते हैं। उसके बाद अबू बकर इस्लाम कबूल करते हैं, जो कि बहुत बड़े कारोबारी थे और यूं कहे तो मोहम्मद के बहुत बड़े अंधभक्तों में से एक थे। 613 ईस्वी में मोहम्मद ऐसे ही लोगों को बहला फुसला के इस्लाम कबूल करवाते थे। कुछ उनकी बातों में डर कर कबूल कर लेते थे और बहुत से नहीं भी। लेकिन मोहम्मद 4 साल के भीतर महज 40 लोगों तक इस्लाम को पहुंचा पाए, जो कि एक वक्त पे उनका कारोबार थम सा गया, क्योंकि लोगों का मानना था कि आम लोगों की तरह पला बड़ा इंसान भला पैगंबर कैसे हो सकता है, लिहाजा उसे ढोंगी करार कर दिया। इस बात से गुस्सा होकर उसने काबा पे कब्जा करना शुरू कर दिया और ये ऐलान कर दिया कि यह मंदिर सिर्फ अल्लाह के बंदों के लिए होगा और गैर मुस्लिम को यहाँ पैर रखने तक की इजाजत नहीं होगी। यह सुन मूर्ति पूजकों को मोहम्मद पे बहुत गुस्सा आया और उन्होंने मुसलमानों की बदसलूकी से तंग आकर उन्हें सबक सिखाना शुरू कर दिया। लेकिन अबू बकर ने उनसे माफी मांग कैसे जैसे करके उनको उनके चंगुल से बचा लिया।
614 ईस्वी में मोहम्मद को 2 जाने माने लोगों को इस्लाम कबूल कराने में कामयाबी मिलती है, जिनमें से एक उनके चाचा हमजा और दूसरे उमर, जो कि इस्लाम के दूसरे खलीफा चुने गए। साथ ही उन्होंने इस्लाम को फैलाना शुरू कर दिया। इसके बाद मोहम्मद ने 83 आदमी और 18 औरतों की टोली को मोहम्मद ने मक्का से अल्बानिया भेज दिया, ताकि उन मुसलमानों की जान मक्का के लोगों से बची रहे। लेकिन इस्लाम की वजह से बहुत से परिवार बिखर रहे थे, बच्चे माँ बाप से जुदा हो रहे थे और लोगों में फूट डालने का काम कर रहा था इस्लाम। लेकिन मोहम्मद लगे थे मूर्तियों का वजूद मिटाने में। लेकिन गैर मुस्लिमों ने शांति बनाए रखने के लिए मोहम्मद से प्रस्ताव रखा कि मुस्लिम अल्लाह की और गैर मुस्लिम मूर्तियों की साथ साथ इबादत कर सकते हैं। लेकिन मोहम्मद ने इसे ठुकरा दिया और ऐसा करना इस्लाम के खिलाफ करार कर दिया। लेकिन मोहम्मद की नासमझी की वजह से गैर मुस्लिमों ने मुसलमानों के साथ हर तरह के लेन देन और शादी ब्याह करना रद्द कर दिया। यूं कहे तो उन्होंने उनका हुक्का पानी बंद कर दिया। हालांकि बहिष्कार का सिलसिला करीब 30वें साल तक जारी रहा, जिसकी वजह से मुसलमानों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई और वे सब भूख से तड़प रहे थे। लेकिन कुछ गैर मुस्लिमों को उनकी हालत पे तरस आ गया और उन्हें छुप छुप कर खाना भेजा करते थे। बहिष्कार की वजह से मुसलमानों की हालत भूख और परेशानी से बद से बदतर होती गई। लेकिन मोहम्मद अपनी जिद पे अड़े रहे और लोगों को झूठी जीत की आस बनाया करते थे। अबू बकर, हमें इस मुश्किल घड़ी में डट के साथ रहना है, क्योंकि अल्लाह ने हमसे वादा किया है कि जीत हम मुसलमानों की ही होगी। मैं हरदम तुम्हारे साथ हूँ। शुक्रिया, तुम्हारे बिना मेरे इस्लाम का कारोबार यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। मम्मी, मैं बहुत भूखी हूँ, मैंने आज कुछ भी नहीं खाया। बस बेटा, थोड़ी देर और रुक जाओ, सब ठीक हो जाएगा। अबू बकर, देखते नहीं हमारे सभी लोग भूख से तड़प रहे हैं। अल्लाह ने मुसीबत में हमारा साथ छोड़ दिया। अबू बकर, तुम्हारी बातों में आकर हमने इस्लाम अपना तो लिया, लेकिन सिवाय भूख और परेशानी के अलावा हमें कुछ भी नसीब नहीं हुआ। इस्लाम की जंग ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। मोहम्मद सालों से ये कहते आ रहे हैं कि अल्लाह ने हमें इस दुनिया पे हुकूमत करने के लिए भेजा है, लेकिन अल्लाह ने तो हमें परेशानी में छोड़ दिया। बस अब और सहन नहीं होता। इस्लाम को खड़ा करने के लिए हमने सारी जमीन जायदाद लुटा दी, बस अब और नहीं। बेकार का रोना बंद करो। क्या तुम लोगों का कोई अपना मर गया जो इतना बवाल मचा के रखा है? जरा सी परेशानी भी सहन नहीं होती। यकीन रखो, जीत हमारी ही होगी, क्योंकि अल्लाह ने हमें इस दुनिया पे हुकूमत करने के लिए भेजा है। हम हुकूमत कब करेंगे पैगंबर साहब, कब करेंगे? हम भूख से तड़प रहे हैं। मम्मी, खाना कब दोगी? थोड़ा सा सब्र रखो मेरे दोस्तों, थोड़ा सा। वो तो भला हो उन गैर मुस्लिमों का, जिन्होंने हमें खाना देकर उस रात हमारी जान बचाई, वरना हम सारे मुसलमानों का वजूद वहीं मिट जाता। यही तो जीत का इशारा है। देखते नहीं अल्लाह कैसे दुश्मनों के हाथों से हमारे लिए मदद भिजवा रहे थे, क्योंकि अल्लाह चाहता है कि हम जिंदा रहे और दुनिया पे हुकूमत करे। समझ जाओ, जीत नजदीक है, बस मेरे साथ खड़े रहो। अगर ऐसा है तो हम सबको साथ मिलकर रहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने इनसे वादा किया है कि जीत हमारी ही होगी। जिन लोगों को मोहम्मद ने काफिर कहा, उन्हीं काफिरों ने उनकी जान बचाई। 619 ईस्वी में लड़ाई थम गई। मोहम्मद का इस्लाम मक्का के लोगों ने साथ साथ ठुकरा दिया
लिहाजा मोहम्मद ने रागीरों को इस्लाम सिखाना शुरू कर दिया। इसके तुरंत बाद खदीजा और उसकी मौत के 5 हफ्ते बाद उनके चाचा अबू तालिब चल बसे। लेकिन मोहम्मद ने यह साबित कर दिया कि वो वाकई में गिरे हुए इंसान की जात पे कलंक थे, क्योंकि जिन गैर मुस्लिमों ने उनकी और उनके कौम की जान बचाई, उन्हीं के खिलाफ वो जंग की साजिश रच रहे थे